Share Gurukul is also one of them, where we teach students stock market program from very basic to professional level. So just to give you an understanding of what Share Gurukul is and what do we teach at Share Gurukul. Established in 2002, Share Gurukul is a 2 decades old share market education institute in New Delhi. As I said earlier, it's a part of Bajaj Capital Group. This is one of the oldest training institute, or rather I would say the first institute who started teaching technical analysis in Delhi NCR. At Share Gurukul, we have trained more than 10,000 students across India. We have the best trainers who have decades of experience in the stock markets. Now coming back to our today's webinar on Introduction to Technical Analysis with CS Sachin Alwal. Sachin sir is a chartered accountant, and due to his passion in the financial market, he has dedicated his time and life to financial market. Sachin sir is a seasoned technical analyst, stock market coach, finance faculty, portfolio manager, trader and investor. He plays multiple roles and carries vast experience in investing and trading in the different testing times. He is a SEBI registered NISM smart trainer and has delivered more than 3,500 plus hours of training for stock market exchanges, leading brokerage houses, the Association of Technical Market Analysts, and various leading colleges, universities, and institutions of reports. 3 years in a row, he has been awarded as the best trainer by the Bombay Stock Exchange Institute for his lecture and stock market training. CS Sachin sir also a blogger by his passion, and for almost a decade he has been writing blogs and nifty views on his blog sachinstockview.blogspot.com with a very high success ratio. To his credit, he has also done an accurate forecast of almost every top and bottom of Nifty in the last 10 years. Please join us to welcome Sachin sir. Over to you, sir. Thank you, Ganesh. Thanks a lot. Welcome to you all. Good evening, everyone. We are here for analyzing some different things about the financial markets. Financial market है क्या, technical analysis है क्या, क्यों इसे समझना चाहिए, and so on and so forth. On behalf of Share Gurukul, मैं आपको बहुत तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ, and let us be starting the session right now. देखिए, Shashi, can you please remove this banner? Thank you. देखिए सर, कहानी क्या है? My deliberation will be first 5 minutes of the ultra basic. Why the technical analysis is important? क्यों होना चाहिए? क्या इसका फायदा है? And blah blah blah. And after that, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ बातें करेंगे. देखिए पॉइंट क्या है, मार्केट में पैसा कमाने की इससे अच्छी जगह नहीं है स्टॉक मार्केट से ज्यादा. दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज टेम्पल ऑफ वेल्थ. क्यों? आप कोई भी काम कर रहे हो ना, उस पर्टिकुलर काम में आप कुछ कमाना चाहते हैं. परसेंटेज रिटर्न एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट आप किसी भी बिजनेस में नोट कर लीजिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा है. बट आयरनी ये है कि मोर देन 85%, मैं बड़ा सोबर तरीके से बोल रहा हूँ, कारण शायद डाटा कुछ और इससे ज्यादा नुकसान का है. मोर देन 85% ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर पैसे को लूज करते हैं जी मार्केट में. द सिंपल रीजन इज नॉलेज नहीं है. अदरवाइज अगर मैं आपको एक चीज बोलूं, दिस इज द प्लेस, दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी, इट हैज अ डेस्टिनी टू मूव अप. मार्केट का डेस्टिनी है जी. इफ आई से दिस, विल यू एग्री टू इट? यू हैव टू. आपके पास कोई चॉइस नहीं है. सर वीडियोस ऑन कर लीजिएगा जो कर सकते हैं प्लीज, दैट विल बी बेस्ट. आप कभी भी 8-10 साल बाद उठा के देख लीजिए, आप जहां भी होंगे ऊपर मिलोगे. रीजन सर, रीजन है, अगर हम समझते हैं, मैं शेयर हटा रहा हूं, अगर हम समझते हैं कि, थैंक यू अनूप सर एंड प्रदीप सर, बाकी लोग भी कर लो सर वीडियो ऑन. अगर हम समझते हैं कि जीडीपी बढ़ेगा, अगर हम समझते हैं कि इन्फ्लेशन रहेगा, तो अल्टीमेटली देयर विल बी कंपनीज हु आर मेकिंग मनी, और जो कंपनी पैसे कमा रही होंगी, और
Okay, am I not audible clearly to others? You are, sir. You are very loud and clear, sir. Perfect. सुरेश जी, प्लीज चेक एट योर एंड. अगर वो कंपनीज पैसे कमा रही होंगी तो विश्वास मानिएगा, एक छोटा सा थंब रूल, उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा. और अगर उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा तो शेयर का भागना मजबूरी हो जाएगा. अगर शेयर नहीं भागता है तो वो शेयर अंडर वैल्यूड हो जाएगा. और अगर वो अंडर वैल्यूड हो गया तो सेंस विल प्रिवेल एंड अल्टीमेटली द मनी विल फ्लो टू दैट कंपनी. तो एक ना एक दिन तो उसे भागना ही पड़ेगा. पर अगर अब ओवरऑल मार्केट की बात करें तो ओवरऑल मार्केट में अगर मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज के साथ ऐसा होगा तो सारी भागेंगी ना. तो विच विल लीड टू इंडेक्स भागेगा. और इंडेक्स में ऊपर ऊपर की क्रीम है जी. टॉप कंपनीज इंडेक्स में है, कंपनियां बदलती रहेंगी, पोजीशन चेंज होती रहेगी. तो टॉप कंपनीज इंडेक्स में है वो तो अंडर वैल्यूड हो ही जाएंगी अल्टीमेटली. दैट इज व्हाई ये भागती चली जाती हैं. कभी भी उठा के देख लो 8-10 साल के बाद यू विल फाइंड हायर. तो ये मार्केट ऐसा जिसका डेस्टिनी है कि इसने ऊपर जाना है. पर प्रॉब्लम क्या है, उसके बावजूद सब इसमें पैसे खोते हैं. रीजन, सब जल्दी में है, सबको पैसे जल्दी चाहिए. सॉरी सर. इस मार्केट को अगर आप फॉलो करना सीख लेंगे, इस मार्केट के साथ चलना सीख लेंगे, ये मार्केट समय देती है, इंडिकेटर्स देती है, पैटर्न्स देती है, जिसके बेस पर आपने उसमें एंटर करना है या एग्जिट करना है. और यदि हम वो जान पाए, वो जानने का तरीका क्या है सर? एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं. अगर मैं आपसे पूछूं आज बारिश आएगी, आएगी क्या? पता नहीं, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट प्लेसेस क्या वेदर है. बट सर एक कंडीशन बड़ी पूरी पक्की है, मॉनसून का महीना, रात का समय, काले बादल, बिजली का चमकना, बादला को का गरजना और ठंडी हवा का चलना. अगर ये 6 कॉम्बिनेशन सेट हो गए ना सर, बारिश जरूर आएगी. एग्रीड है सर एवरीवन? है ना? कॉम्बिनेशन है. जो भी 4 पैर का एनिमल होता है, एक और कॉम्बिनेशन है जी, वो कभी भी एक्साइटेड होगा या एग्रेसिव होगा. आप नोट कीजिएगा, कभी गूगल पे जाके वीडियो देखिएगा, उसकी पूंछ सीधी हो जाएगी. गुस्से में होगा, पूंछ सीधी हो जाएगी. अटैक करेगा तो उससे पहले पूंछ सीधी हो जाएगी. सर इंडिकेशन है. तो भगवान ना करे कभी उसके सामने आ जाए तो जल्दी डरने की जरूरत नहीं. जब पूंछ सीधी हो तो डरना है. अरे तो टेक्निकल एनालिस्ट है जी हम. राइट. पॉइंटलेस, पॉइंटलेस. हमें वो इंडिकेशन देखनी है, कॉम्बिनेशन देखना है. अगर ये कॉम्बिनेशन सिर्फ वहीं बनते हैं क्या? नहीं सर. दिस मार्केट इज साइकोलॉजी, दिस मार्केट इज पैटर्न्स, दिस मार्केट इज इंडिकेटर्स. अगर हम वो कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर समझ पाए कि यार ये ऐसे ऐसे करके वैसे होता है तो हो जाता है. तो एक कॉम्बिनेशन जो बना था हिस्ट्री में 1000 बार बना, 700 बार उसका रिजल्ट हुआ कि प्राइस ऊपर गया, 700 या उससे ज्यादा. आज फिर वही कॉम्बिनेशन बना है. तो सर बाय करना है और क्या करना है, क्यों दिमाग लगाना है? आप मूवीज देख लो सर. आपने कोई मूवी नहीं भी देखी ना तो विश्वास मानना, अगर उसमें क्लाइमेक्स का सीन चल रहा होगा ना तो आप आके बता दोगे पिक्चर तो खत्म होने वाली है. बैठे थे आप 2.5 घंटे से वहां पे. नहीं सर, वो रीबर्थ की मूवी है तो वही मंदिर की घंटियां बज रही हैं, पत्ते उड़ रहे हैं, ठंड हवा चल रही है. सर वो डेथ का पैटर्न है, पहले हीरो मरा था, विलेन मरेगा. पॉइंट क्या है, हिस्टोरिकली अगर हम चीजों को निकाल कर देखें, एक कॉम्बिनेशन बना था जी, सेम बना है. दिस इज प्योर टेक्निकल एनालिसिस. टेक्निकल एनालिसिस एक वो कला है जिससे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि खरीदना कब है और कब तक खड़े रहना है और बेचना कब है. और कुछ तो पता भी नहीं करना सर. पर ध्यान रहे, अब थोड़ा क्रक्स पे आ रहा हूँ, काम की बात और ज्यादा, पहले तो कहानियां थी. ध्यान रहे, टेक्निकल एनालिसिस इज फर्स्ट नॉट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रेड. पहला स्टेप क्या टेक्निकल एनालिसिस का है? Suresh ji, if I stay in English, I think other people may not be liking it. It is the sense of the house. I don't have any problem in both the languages. I think if whatever people say, should I deliberate purely in English or I keep it mixed or in Hindi? Please say, because ultimately the majority will prevail. Come on, sir, fast time नहीं है. Come on, sir, fast, 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 sir.
fast, only 4 replies, sir. English. Okay. Then it is better, Suresh, if it is comfortable to you, we will stay it in a mixed language. That will be helpful to all the viewers, because ultimately, yes, I do agree that the people belong to different part of the country, and over the period of time we have understood one thing, that जो feel हिंदी में आता है ना, right, वो शायद whosoever understands हिंदी, तो उसको हिंदी में वो जो दिल तक बात छू जाती है ना, वो शायद जाती नहीं है. बट ठीक है, आई विल ट्राई अ मिक्स्ड लैंग्वेज दैट विल बी कंफर्टेबल टू एवरीवन. सर, कहानी क्या है कि टेक्निकल एनालिसिस इज फर्स्ट नॉट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रेड, एंड सेकंड ट्राई टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रेड. ये ध्यान रखिएगा जी. प्रॉब्लम क्या होता है, लोग ये समझते हैं सिर्फ सही होना है. सॉरी. दूसरा बात, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इज कंसीडर द रिस्क रिवॉर्ड रेशो. रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है? रिस्क रिवॉर्ड रेशो है जी कि अगर आप गलत हुए थे तो कितना पैसा आपने दिया था, और आप सही हुए थे तो आपने कितना कमाया था. When you were wrong, how much money you lost, and when you were right, how much money you gained. ध्यान रखिएगा सर, always target minimum 2:1. Try for a target. If your reward is greater than your risk, obviously, boss, if you are taking 100 trades, case 1 आपका प्रोबेबिलिटी तो 70 का है ना सर टेक्निकल में. अगर 70 सही हुआ, विच इज द बेस्ट केस सिनेरियो, तो उस केस में आप 20 रुपए हर ट्रेड से कमाते हैं तो 1400 कमाएंगे. चलिए 10 में से 7 का एग्जाम्पल लेते, जल्दी समझ में आएगा. पर एक्चुअली 100 में से 70 है, 10 में से 7 नहीं है. 7 ट्रेड सही हुआ तो 140 रुपए कमाएंगे. 3 ट्रेड गलत हुआ, 30 रुपए जाएगा. व्हाट इफ 50-50 हुआ तो 5 ट्रेड सही होगा, 100 रुपए आएंगे. 5 ट्रेड गलत हुआ, 50 रुपए जाएंगे. यू आर इन प्रॉफिट. एंड व्हाट इफ योर एनालिसिस गो हेवायर्ड? अब क्या होगा जी? 7 ट्रेड गलत हुआ, 70 रुपए जाएंगे. 3 ट्रेड सही हुआ, 60 आएंगे. अ मैक्सिमम लॉस ऑफ 10 रुपीज. यस, कमीशन वगैरह एक्स्ट्रा है, वो मान लिया हमने, ठीक है, वो अलग है. टुगेदर विद द फैक्ट, एक जो बेसिक आइडिया यहाँ पर आता है, लेट द प्रॉफिट रन. आपके सभी चांस है, आप उन 3 ट्रेड से भी शायद 70 कमा लो. बट स्टॉप लॉस कट गया ना, तो सर भगवान भी आ जाए, उनसे को पहले नहीं आया गया आपसे, अब तो कट गया, मैं काट रहा हूँ. अब आए हो तो अगले वाले में हेल्प करना, राइट? इसको नहीं रखूंगा. Point is this, sir. This is the discipline. It is the rule-based trading which you do, and the moment you understand that, sir, मार्केट आपका है, कोई कारण नहीं है कि आप पैसे नहीं कमाओगे. The only thing is, सर, इसको थोड़ा सा सेंटर में रखना. ग्रीड. इंपॉर्टेंट बात क्या है, हर बंदा जल्दी में है, और 5-5 साल 8-8 साल हो गए, बंदा लॉस में. जल्दी बहुत है उसको. अगर उसको ये बोल देते भाई पहले दिन पेशेंस से काम करता तो अच्छे खासे प्रॉफिट में होता. मुझे आप कोई और बिजनेस दिखा दो जो इससे ज्यादा रिटर्न देता हो. कहानी क्या है सर? म्यूचुअल फंड एक नया कॉन्सेप्ट कुछ सालों से आया है. आपको आधा मिनट उस पर लगा रहा हूँ. सर एक बात ध्यान रखना, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ना 2 टाइम द एफडी का रिटर्न नहीं आया ना तो दुकानें बंद हो जाएंगी. आप ही कहोगे ना क्यों लगाऊं? Now the point is, when they are able to generate 2.5 times the FD return, वो जो यार आज अराउंड 60% के आसपास है, तो the reasonable target is 15-20% return if they are able to get it over the period of time. Historical average देख लीजिए उनका, तो वो कमा सकते हैं on a large portfolio. जब उनको ये भी पता है कि मार्केट अगर गिरेगा तो वो बेच नहीं सकते हैं. They cannot be in 100% cash, right? They have to bear everything on their chest. उसके बावजूद वो वहां पे कमा सकते हो उन्हें लार्ज पोर्टफोलियो. तो यार आप अगर छोटे पोर्टफोलियो में भी ठीक ठाक नहीं कमा सकते हो तो फिर मतलब अब क्या ही बोलूं. ठीक है, चलिए आते हैं सर. टेक्निकल एनालिसिस क्या है सर? सिंपल सी ये चीज है, जल्दी से खत्म करेंगे. सीख नहीं रहे हैं, फील ले रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा. अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड क्या है जी? प्राइस ऊपर जा रहा है. ऊपर जाओगे तभी तो अप ट्रेंड होगा ना, और नीचे गिरोगे तो डाउन ट्रेंड है जी. लाइन ऊपर जा रही है तो अप ट्रेंड है, लाइन नीचे जा रही है तो डाउन ट्रेंड है. सीधी सी बात है. बट द पॉइंट इज, इसका डेफिनेशन क्या है? अप ट्रेंड में आप
नया हाई लगाते चले जाओगे तभी तो ऊपर जा रहे हो ना, हायर टॉप्स। जब टॉप हाई लगा दी तो बॉटम पहले से बराबर में थोड़ी ना लगाएंगे, ऊपर जा रहे हैं तो कुछ तो करोगे, सीढ़ियां देखो, राइट। तो दिस नोन एज हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स, दिस इज नोन एज लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम्स। अप ट्रेंड की पहचान क्या है, हायर टॉप हायर बॉटम बनेगा। डाउन ट्रेंड की पहचान क्या है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनेगा। जल्दी से खत्म करते हैं। डाउ थ्योरी यही है। डाउ थ्योरी आपको क्या बोलती है, टेक्निकल एनालिसिस में आप क्या सीखते हैं जी, अप ट्रेंड है समझ में आ गई, ये डाउन ट्रेंड है समझ में आ गया। भाई साहब ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कब हो गया, मैं तो सो रहा था, हुआ कभी ये तो बताओ। यहाँ पे डाउ थ्योरी बोलती है सर अप ट्रेंड में यू शुड ट्राई टू बाय, बी ए बायर इन एन अप ट्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, रिमेन अ बायर इन एन अप ट्रेंड। ठीक है जी, बाय कर रहे थे सर, मैं तो बाय ही कर रहा था, पर मुझे ये तो बताओ सेल कब करना है। डाउ थ्योरी नहीं बता पाई। डाउ थ्योरी ने थोड़ा लेट करा, उसने बोला हायर टॉप्स एस लगा हुआ है, हायर बॉटम्स। जब वो स्टॉक के बनाना बंद कर देगा और वो लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बनाने लग जाएगा तो वो डाउन ट्रेंड है। ट्रेंड इज ऑन टिल इट इज रिवर्स्ड। अगर एक बार एक स्टॉक ने ट्रेंड पकड़ लिया तो उसमें जाता चला जाएगा। जब वो अप ट्रेंड में था तो नई ऊंचाइयां बनाता चला जाएगा। जब वो लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बनाने लग जाए, दैट इज समवेयर यहाँ पर, समवेयर यहाँ पे। डाउ थ्योरी को उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई कि जी स्टॉक में रिवर्सल आ गया है, स्टॉक इज इन अ डाउन ट्रेंड। पर फिर एक जो डायलॉग था वो याद आ जाता है, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, राइट। सर जान निकल गई, मैं यहाँ पे खरीद कर बैठा था, बहुत देखा, हाथ को आया, मुंह ना लगा। नहीं होता सर ऐसे, दुखता है। कारण मन में क्या चीज आती है, डबल लॉस हो गया जी। वो क्या, एक तो प्रॉफिट नहीं आया, दूसरा बेच नहीं आया, बेच नहीं पाया। अगर मैं यहाँ बेचता और यहाँ बेच भी लेता, मतलब एग्जिट भी कर जाता पोजीशन से और नया शॉर्ट कर देता तो मजे आ जाते। जैसे एक पुरानी कहावत है, दो इंसान बैठे थे, अच्छे बातें कर रहे थे। एक इंसान जोर से उठा, हटा, हंसा और यूं हाथ नीचे मारा, टेबल का शीशा टूट गया। जिसका शीशा वो कहता था यार डबल नुकसान हो गया, 5-10 हज़ार का नुकसान हो गया। वो कहते कहते 5 हज़ार का शीशा आया था, 5 हज़ार का नया लाना पड़ेगा, तो 10 हज़ार का नुकसान हो गया। यही चीज मार्केट में होती है। एक्चुअल लॉस तो 5 का ही था, पर 10 का बोला जाता है। दैट इज कि मैं काश यहाँ बेच लेता, अगर पहले बेच लेता तो ये लॉस बच जाता, और यहाँ शॉर्ट कर देता तो प्रॉफिट आ जाता। डबल नुकसान हो गया जी, प्रॉब्लम है। तो डाउ थ्योरी इज ऑल अबाउट, डाउ थ्योरी नहीं बता पाई। डाउ थ्योरी ने यहाँ तो बोल दिया बाय करो, और डाउ थ्योरी ने यहाँ बोल दिया सेल करो। समझ में आता है भाई साहब यहाँ क्या करना है, डाउ थ्योरी बता नहीं पाई। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। टेक्निकल एनालिसिस इंसानों ने बनाया है, इंसान की फितरत है। कहता है इसके बाद तो समझ में आ गया, इसके बाद समझ में आ गया, अब क्या करना है। इसकी इच्छा हुई काश मैं यहाँ बेच लेता, उसने पैटर्न निकाला हेड एंड शोल्डर। काश मैं यहाँ बेच लेता, उसने हेड पैटर्न निकाला डबल टॉप। काश मैं यहाँ बेच लेता, उसने पैटर्न निकाला कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस। सब कराई जाएंगी उसमें। दिस इज कला है। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस ट्राई टू बी अ बायर हेयर। यहाँ पर बाय के पैटर्न ढूंढने हैं। फ्लैग हो गया, कप विद हैंडल हो गया, ट्राइंगल फॉर्मेशंस हो गए, वेज हो गया, चैनल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, यहाँ काम आएंगे। इसके बाद सेल देखना है, वो सारे यही काम आएंगे जितने गिने हमने। ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स है ना, ट्रेंड फॉलोइंग पैटर्न्स। इसके बाद रिवर्सल फॉर्मेशन। जी बेचना जल्दी है, यहाँ पे आया हेड एंड शोल्डर, वो पढ़ लो जी। उससे पहले बेचना है डबल टॉप, ये कर लेंगे जी। ये रिवर्सल फॉर्मेशन हो गया। और यहाँ पर आए कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, जिससे मैं पहले आइडेंटिफाई कर पाया कि ऐसा होता है तो हो ही जाता है। जो बेसिक फॉर्मेशन इसमें से एक आता है उसको करते हैं जी, इट इज हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन, सिंपलेस्ट ऑफ फॉर्मेशन है। सोचो जी, एक चूहा चढ़ा यहाँ पर, चूहा अप ट्रेंड में था, चूहा यहाँ से चढ़ रहा था जी, इधर जाया था, अप ट्रेंड में था, हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा था। और सोचिए मैंने वो बाहुबली वाला कवच डाला हुआ है, सो दैट मेरे शोल्डर उभर के आ जाए, राइट। यहाँ से वो ऊपर चढ़ा, अभी शोल्डर पे है, यहाँ आ गया ये नेक पे, यहाँ से फिर ऊपर गया, फिसल जाएगा समझ में आता है, यहाँ आ गया सर, ये इसको हेड बोला गया। यहाँ पर अभी नेक पर आया, फिर से शोल्डर पे आएगा, और वो जैसे ही यहाँ नीचे आएगा जहाँ शर्ट की सिलाई होती है, जैसे ही उससे नीचे कदम रखेगा आप बोलोगे सर हिलना मत। पहली पहली बार चूहे के मन में आया है कि मैं नीचे आ जाऊं, आपकी आवाज सुनी और चूहा वापस।
कसब तो डांस भी कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है, आपके ऊपर ही है। पॉइंट क्या है, ये सिलाई, ये सिलाई, सिलाई से नीचे है तो चूहे के मन में है कि वो नीचे जाएगा, सिलाई से ऊपर आ गया तो चूहे का मन खत्म हो गया, अब उसे नीचे नहीं जाना है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनता है सर, व्हेन द प्राइस इज गोइंग अप एंड it makes a head and shoulder formation। ये हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, आप इजीली इसमें से मुझे उठाइए और फिट कर दीजिए, लो जी, हेड एंड शोल्डर। वो जो चूहा जा रहा था, दिस इज शोल्डर, हेड, शोल्डर, हेड फिर से, और ये शोल्डर। जैसे ही वो प्राइस इस सिलाई से नीचे आएगा, ये सिलाई कौन सी है, ये होगा, वो बाहुबली मूवी को याद कीजिए, नेक लाइन, तलवार से जब काटती थी गर्दन, क्या कहा था देवसेना, दैट इज ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों को मिला करके, ये नेक के हैं जी ये वाले, इन दोनों पॉइंट्स को मिला करके आप एक लाइन लगा लीजिए, मैथमेटिक्स बोलती है 2 पॉइंट लो और लाइन लगा दो, ये वो शर्ट की सिलाई आ गई जी। द मोमेंट प्राइस गोज बिलो इट, गो एंड शॉर्ट। पहली बार ऐसा हुआ है कि प्राइस नीचे आया है, क्योंकि हमने टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा है, हिस्ट्री देखी है, प्राइस ऐसी शक्ल बनाता है तो गिर ही जाता है, जैसे मुंह फुला के गिर रहा हूं, प्राइस ऐसी शक्ल बनाता है तो गिर ही जाता है। आपने इस लाइन के नीचे सेल करना है, और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, यही लाइन, प्राइस अगर दोबारा इस लाइन से ऊपर चला जाता है तो स्टॉप लॉस सेट। लुक एट द रिस्क, स्मॉलेस्ट ऑफ द रिस्क, इसे नीचे रहेगा लाइन ऑफ कंट्रोल, उस लाइन, उस तरफ हो तो पाकिस्तान में गोले चलने लग जाएंगी, इस तरफ हो तो कंफर्टेबल है ना, इससे नीचे हो तो सेल कर दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए, ब्लैंक सेलिंग कर दीजिए, पुरानी पोजीशन पड़ी थी बेच दीजिए, जीरो पोजीशन, कुछ नहीं है, शॉर्ट कर दीजिए, ब्लैंक सेलिंग, प्राइस नीचे आएगा, ट्राई टू गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट, पर आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, और ये एक ऐसा फॉर्मेशन है जो टारगेट देता है। टारगेट क्या है, बचपन में याद कीजिएगा, हम लोगों ने कभी ना ऐसे करके नापा था, इस तरह, राइट, या स्केल से लेकर के ऐसे ऐसे नापा था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर करेंगे, बचपन फिर से याद करेंगे, ब्रेक डाउन पॉइंट, we will mark this point as a breakdown point। ये लेवल है मान लिया 700, 700 रुपए इस लाइन पर आ रहे थे, मतलब 700 रुपए पे लाइन आ रही थी, जैसे प्राइस 700 से नीचे क्लोज करेगा, क्लोज 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 इज इंपॉर्टेंट, हम इसको शॉर्ट करेंगे। पैटर्न की हाइट नाप लीजिए, पैटर्न का हाईएस्ट लेवल क्या है, मान लिया पैटर्न का हाईएस्ट लेवल है 910, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, 210 रुपए का डिफरेंस हो गया, ये 210 इस पॉइंट में से माइनस कर दीजिए, तो शायद 490 आंसर आएगा, प्राइस जो नीचे गिरेगा 490 रुपए तक चला जाएगा, मतलब यहाँ से 210 रुपए नीचे आने की कैपेसिटी रखता है, और प्राइस विल फॉल टू एंड गो टू 490। लुक एट द रिस्क रिवॉर्ड रेशो बॉस, करना क्या है जी, कसम खानी है क्या, 50 हेड एंड शोल्डर की पकड़ ट्रेड लूंगा, लॉस हो जाए तो बताना, अब ये मत कर देना सर 50 के 50 अलग अलग स्टॉक में एक ही दिन, और अगले दिन न्यूज आ गई ठा सबके स्टॉप लॉस हिट, ऐसे नहीं। मार्केट में एक और चीज बोली जाती है, विच आई ऑलवेज से, ऑल्दो यू सेल्डम फाइंड इट ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, इट इज माय लव्ड चीज जो मैं हमेशा बोलता हूँ, वो क्या, टाइम डाइवर्सिफिकेशन। आप मार्केट को बोलो मार्केट में से पैसे लेके दिखा दूं, जितने भी आपके पास पैसे हैं आप उसको डिवाइड कर दीजिए एक पर्टिकुलर अमाउंट से, जिससे कि एटलीस्ट थंब रूल तो हम बोलते हैं यार, काश 100 चांस मिल जाए, पैसे कम है 50 चांस ले लो, और कम है सर 20 तो लो, 20 से कम करोगे फिर तो रह नहीं, तो ना, एटलीस्ट गिव द टाइम टू योर मनी एंड टू योर एनालिसिस टू बी राइट। अब आप अपने आप को 20 चांसेस दीजिए, इवन इफ एक बंदा बोलता है सर मैंने तो 1 लाख रुपए लगाए, सर कोई बात नहीं, आप क्वांटिटी उतनी लो मेरे भाई कि 5,000 रुपए से ज्यादा एक ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं देना, हो गई 20। अब आप काम कीजिए,
आप गलत होंगे ही नहीं। और तीसरा, आप अपने साथ एक और फैक्टर लगाइए कि मार्केट जी 1 महीने में ना 3 ही स्टॉप लॉस हिट कराऊंगा, या ज्यादा से ज्यादा 4। मेरे 4 स्टॉप लॉस हिट हो गए तो मेरे महीने की छुट्टी होगी, अगले महीने आऊंगा। You can be right at a sorry, you can be wrong at a particular time, but you cannot be wrong always. क्रक्स है जी। मार्केट की एक बार की मूवमेंट, एक बार की वॉलेटिलिटी, चार्ट पैटर्न अच्छा दिख रहा था, बैड न्यूज आ गई, सब खत्म। क्या करिएगा? अगर आप ये करते हैं तो सर हो ही नहीं सकता। मार्केट को अब आपको 20 बार गलत नहीं करना, 20 बार लगातार गलत करना है। अगर आपके 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए, तीसरे में पैसे आए तो वापस पहुंच गए ना सर, और क्या पता और ज्यादा अच्छे पहुंच गए। तो अगर आप इस प्रकार से मार्केट से बातें करेंगे ना सर, मार्केट की हिम्मत नहीं है कि आपको बाहर निकाल दे। और जो इंसान मार्केट में जिंदा रह गया ना सर, वो कमा लेगा। प्रॉब्लम ये है, यहाँ लोग जिंदा नहीं रहते हैं। राइट, जिंदा से मतलब पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर नया जन्म लेके आते हैं और पैसे लेकर के। हेड एंड शोल्डर क्लियर है सर एवरीवन? एनी क्वेश्चन अबाउट दैट? इसी तरह से इन्वर्टेड बनता है। चलिए 5 मिनट क्वेश्चन रोकते हैं। इसी तरह इन्वर्टेड बनता है सर। प्राइस कम्स डाउन एंड इट इज कमिंग डाउन, मेकिंग अ लोअर हाइज एंड लोअर बॉटम्स, लोअर टॉप्स लोअर बॉटम। और उसके बाद ये उल्टा हेड एंड शोल्डर बनाता है, एज इफ इंसान वही है पर अब की बार उल्टा है। ये रहा जी नेक, ये रहा नेक। दोनों को ज्वाइन कीजिए, लाइन लगा दीजिए। जैसे ही प्राइस इसके ऊपर जाएगा सर बाय है। स्टॉप लॉस क्या है सर? नेक लाइन। लॉ पढ़ के आए हैं जी हम तो। नेक लाइन का मतलब ये वाली लाइन, टेढ़ी है तो टेढ़ी है, सीधी है तो सीधी है, ऐसे है तो ऐसे है, परवाह नहीं है। आपने बाय करना है, टारगेट क्या है? इसके और इसके बीच का डिफरेंस ऊपर ऐड कर दीजिए, यहाँ तक का टारगेट होगा। और आपको बड़ी खुशी होगी। ये चीज, एक और चीज लास्ट पहले बोलने से पहले, हेड एंड शोल्डर से हेड एंड शोल्डर पेंटिंग थोड़ी ना कर रहे हैं, प्राइस अपने आप बना रहे हैं। तो अगर ये शोल्डर इतना मोटा हो गया, हो जाने दो ना सर, क्या दिक्कत है? हम पेंटिंग थोड़ी ना कर रहे हैं, प्राइस अपने आप बना रहे हैं। इट इज ऑल्सो हेड एंड शोल्डर। टेढ़ी लाइन हो जाए परवाह नहीं, लॉ पढ़िए, यहाँ बेचेंगे, सिंपल। ये जी कोविड का लो लगा था। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। हेड डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, परवाह नहीं करनी सर। पेंटिंग थोड़ी ना कर रहे हैं जी। रावण के 10 सिर थे, खत्म हो गई बात। एक ही जगह पे आपको समझ में आया, यार ये तो ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, अब क्या करूं? सारे सही हो सर। जो पहले बना ना, तो ट्रेड वो है। भैया मुझे पहले दिख गया, मैं तो ट्रेड ले लूंगा ना, मुझे थोड़ा ना पता दोबारा बनेगा कि नहीं बनेगा। ट्रेड पैटर्न बन गया, मैंने ट्रेड ले ली, खत्म है बात। आप यहाँ पे भाई करोगे सर। लेवल क्या था? 17,900 के आसपास, मोटा मोटी 30 पॉइंट इधर उधर है। 17,870 एग्जैक्ट। तो 17,900 मान लिया। 17,900 ये है जी। ये लो देख लो जी कितना है, 16,900 मोटा मोटी। ये 1000 पॉइंट की तेजी आएगी, 900 की लगा लो। 1000 पॉइंट की तेजी आएगी जी, 17,900 से ऊपर जाएगा जी, 18,900 तक चला जाएगा। चला गया जी खेल खेल में। और मजे की बात है जी, मैं अकेला ही चला था। लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, लो जी एक और बन गया। ये रहा जी शोल्डर, ये रहा हेड, और ये रहा शोल्डर। वो जी हेड जितना मर्जी बड़ा हो जाए, वो जी हेड जितना मर्जी छोटा हो जाए, जितना मर्जी बड़ा हो जाए, क्या फर्क पड़ रहा है? पेंटिंग थोड़ी ना कर रहे हैं। तो ये लेवल क्या है जी? ये लेवल है सर 18,400। ये वाला लेवल कितना है? 17,000। 1,400 पॉइंट की तेजी आएगी, 19,800 का टारगेट आएगा, लग गया जी। तो शेयर का नाम लेना, मजा आ जाएगा। लो सर, साफ साफ से दिखा रहा हूँ जी अभी तो। हेड एंड शोल्डर सर, सेल आ गया। हेड एंड शोल्डर सर, सेल आ गया। देखते जाना सर बस। साफ सा बनाऊंगा, वहां पे बना हुआ था, मैंने छोड़ दिया। ये मैं दिखाना चाह रहा था। कोविड का लो है जी ये। इवन अ ब्लाइंड पर्सन कैन सी, अंधे को भी दिख जाए वाला फॉर्मेशन, वाह जी वाह। 8,600 पर पाया आया है। 7,600, 500 का लो लगा था। 7,600 मान लो, 1000 पॉइंट की तेजी आएगी सर। 9,600 तक चला जाएगा, चला गया, 9,800 लग गया। उसके बाद मैं अकेला ही चला था, लोग मिलते हुए, कारवां बनता गया। एक और है जी शोल्डर, बड़ा सारा हेड और एक शोल्डर। पेंटिंग थोड़ी ना कर रहे जी, प्राइस अपने आप बना रहा है। तो मॉडर्न आर्ट है जी ये। ब्रश साफ करके रख दो, देखते रहो बाद में क्या क्या बना है। लो जी,
यहाँ से 10,100 पर बाय आया जी, 7500 का लो है, 2500 पॉइंट की तेजी आएगी जी। इंडेक्स में 25% की तेजी मेरे भाई, 10,000 की आइटम 2500 पॉइंट ऊपर जाएगी, 25% का तेजी इंडेक्स में आएगा तो शेयरों का देखो क्या हाल होगा। और उसके बाद वाह जी वाह, ये लो जी, मैचिंग मैचिंग शोल्डर है जी, छोटे से शोल्डर के साथ छोटा सा शोल्डर एक और है, यहाँ से गया जी 12,000 और ये है जी 7,500। ओ माय गॉड, देखकर बंदा पागल हो जाए। 4,500 पॉइंट की तेजी 12,000 वाली आइटम में, 40% की इंडेक्स में तेजी आएगी, सोचो शेयरों का क्या हाल होगा। करना है तो बाय करना है, वरना कुछ नहीं करना है। टारगेटेड है जी सारे, सोचने समझने की जरूरत नहीं है जी। पॉइंट इज, लुक एट दिस, हाउ इट इज गिविंग यू अ रिजल्ट। अब प्यारा सा छोटा सा, अगर मानो तो हेड एंड शोल्डर, मानो तो शंकर, नहीं तो कंकर, है ना। और यहाँ पर भी सेल का हेड एंड शोल्डर जी, इसको थोड़ा सा साफ सा दिखा देता हूँ, ये रहा जी, इवन ब्लाइंड पर्सन कैन सी, बहुत ही बेहतर है। अरे ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, एक छोटो 1000 बनते, शेर का नाम लो उस पे बनेंगे। पॉइंट है, इट इज फर्स्ट बेसिक फॉर्मेशन जो वो अंडरस्टैंड करते हैं। एंड द पॉइंट इज, आप ट्रेड लें अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए, चल रहा है तो चल रहा है, नहीं तो चाइनीज। हमारा क्या गया जी, इफ यू बेंट अपॉन कि मैं ट्रेड लूंगा और मैं 20 ट्रेड लूंगा और हेड एंड शोल्डर पे लूंगा, सर कोई कार, और अलग अलग समय पे लूंगा, 20 ट्रेड है तो एक महीने में 5 से ज्यादा नहीं, कुछ तो करेंगे ना सर, मतलब ही नहीं है। दूसरा सर, जो पेशेंट इन्वेस्टर्स हैं, बिकॉज नाम से और जिन्होंने वीडियोस ऑन करा उनसे एक फील आता है, ये हाँ यार ये वाला पर्सन ना थोड़ा वेट कर लेगा टाइप्स। सर उनके लिए किसमें मंत्र है कि भाई किसी शेयर किसी पैटर्न की किसी शेयर के साथ खुद तक थोड़ी ना है कि लड़ाई हो रखी हो। आप एक शेयर पकड़ लीजिए और एक पैटर्न पकड़ लीजिए, जब बनेगा भैया तेरा तो लूंगा। सर कैसे नुकसान होगा मुझे बताओ तो सही। पर पॉइंट आती नहीं है सर पेशेंस। सिंपलेस्ट ऑफ द फॉर्मेशन, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, आप इंडिकेटर्स का गेम है, पैटर्न्स का गेम है, और उनको देख, सॉरी ओके, एक बार किसी जिनका आवाज आया था म्यूट कीजिएगा प्लीज, म्यूट ऑल करवा दीजिएगा, राइट। वाई टू शिफ्ट द मोमेंटम, है ना, कम वापस आते हैं। तो ये इस चीज का गेम है सर, कि आप इंडिकेटर्स देखिए, पैटर्न्स देखिए, और पैटर्न पर आया है बाय है तो फिर मन की आवाज मत सुनिएगा। बाय है तो बाय है, डरने का नहीं, और सेल है तो सेल है, डरने का नहीं। सेल है तो स्टॉप लॉस के साथ है, बाय है तो स्टॉप लॉस के साथ है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। बेसिक ऑफ द फॉर्मेशन हम लोगों ने किया। इसी प्रकार से आपको एक और छोटा सा फॉर्मेशन दिखाता हूँ जी, जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स, टॉपिक थोड़ी ना कर रहे हैं, फील ले रहे हैं सर। इफ एनीबडी कैन, ओके थोड़ा साफ सा बना देता हूँ, इफ एनीबडी कैन आइडेंटिफाई दिस, मैं इस ये जो बना रहा हूं इसे आप कुछ नाम दे सकते हैं क्या? अगर ऐसे कर दूंगा तो नाम जल्दी आ जाएगा ना सर। कप विद हैंडल, चाय का प्याला, है ना सर। वो आजकल मॉडर्न वाले कप है ना जो सबके घर पे हैं सर। अपने दुख नहीं बता रहा आपको, वैसे बता रहा हूँ एग्जांपल देने के लिए, वो जो वॉशिंग मशीन में सर्फ डालने के लिए यूज होता है ना सर। पॉइंट इज, इट इज अ कप विद अ हैंडल फॉर्मेशन, ब्यूटीफुल फॉर्मेशन। और ध्यान रखिएगा, पैटर्नों का राजा है बाहुबली। जब बनेगा ना सर, और सिर्फ बुलिश है, बीरिश होता ही नहीं, जब बनेगा ना कहर ढा देगा। सर वीडियोस ऑन कर लो ना प्लीज, ऐसा लग रहा है मैं और अनूप सर ही बैठे हैं, राइट। सर कोई तो साथ दे दो, डर सा लग रहा है। चलो वापस आते हैं सर, डोंट टेक इट अदर वे, मैं तो वैसे फील दे रहा था, पता लगा आपको सर मेरे से क्या डरना, एनीहो, है ना। वापस आते हैं। पॉइंट है सर, कप विद हैंडल फॉर्मेशन है, बहुत बेहतरीन फॉर्मेशन है, जब कोई भी बनती है आप विश्वास मानिएगा कहर ढा देती है, और पैटर्नों का राजा है, बाहुबली फॉर्मेशन है। मैं अगर आपको इसका एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाऊं, कप तो कप है, हैंडल तो हैंडल है, जैसा मर्जी बने जितना मर्जी बने,
फॉर्मेशन इज अ फॉर्मेशन, जब बनेगा काम करेगा। अप ट्रेंड होना चाहिए, अप ट्रेंड में ही बनेगा, कॉन्टिन्यूशन फॉर्मेशन है, अप ट्रेंड है, कप विद हैंडल बनेगा एंड द ट्रेंड विल रिज्यूम, दिस इज अ फॉर्मेशन, राइट। और ये कप तो कप की फॉर्म है, हो सकता है ऐसा बन जाए, चलेगा, हो सकता है सिर्फ ऐसा बन जाए जो वॉशिंग मशीन वाला था, हो सकता है ऐसा बन जाए जो दूध वाले भैया दे के जाते हैं, हो सकता है ऐसा बन जाए जो की शेप वाला, राइट। ऑल आर कप्स। हम पेंटिंग नहीं कर रहे हैं, प्राइस अपने आप बना रहा है, एंड प्राइस ऐसे भी बना सकता है, एंड दिस इज ऑल्सो अ कप, अ डिजाइनर कप, एंड दिस इज अ ब्रेकआउट। मुद्दा क्या है, अब ट्रेंड होना चाहिए भैया, साइड में कंसोलिडेशन कर लो, समय बिता लो। कारण पुरानी कहावत है, किसी को हरा नहीं सकते तो थका दो। पहले लोगों ने बाय करा था, उसमें डाउन साइड आया, कंसोलिडेशन दिया, कंसोलिडेशन देने के बाद प्राइस को रोका गया, रोकने के बाद प्राइस ने समय बिताया, समय बिताने के बाद फिर से ऊपर चला, और ऊपर जाने के बाद फिर साइडवेज कंसोलिडेशन आई, लोगों को लगा वीक हैंड्स को मेरा बहुत हो गया, दूसरा पता नहीं फिर से समय ना बिताने लग जाए, निकल जाए। एंड दिस इज द पॉइंट जहां पर फिर से स्ट्रॉन्ग हैंड घुस जाते हैं, एंड दिस मार्केट स्टॉक गोज अप लाइक एनीथिंग। आपको एक जरा सी पहले फील करा दूं इसकी कप विद हैंडल की, बहुत बेहतरीन कप विद हैंडल बायोकॉन में मैं बना था ऑन अ वीकली चार्ट, देखते ही बनता है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कप एंड अ ब्यूटीफुल हैंडल। हैंडल फील नहीं आ रहा तो मंथली पे चले जाते हैं, प्यारी सी फील आ जाएगी। अब तो सर इसमें तो चाय डाल के पी लोगे, इसमें तो चाय डाल के पी ही लोगे। कप विद हैंडल, हेयर एज अ ब्रेकआउट, ऊपर यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे, लाइन कैसे लगाएंगे सेशंस में सीखेंगे। जैसे ही प्राइस इसके ऊपर जाएगा, कप विद हैंडल का ब्रेकआउट है, बेहतरीन वाला ब्रेकआउट है सर, प्राइस ने ऊपर जाना ही जाना है। एमआरएफ में आपको दिखाता हूँ, यू विल कीप seeing it. Oh my god, even a blind person can see. Look at this beautiful cup and a handle. पेंटिंग थोड़ी ना कर रहे हैं, सरप्राइज अपने आप बना रहे हैं। और ये लेवल देखो सर, 55,000, ये लेवल देखो 30,000, बस 25,000 पॉइंट ऊपर जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं। ये तो बोल दिया मैंने, इतना जाना है, सबका वैसे ही निकलेगा। ब्रेकआउट पॉइंट एंड द लोवेस्ट 55,000, मोटा मोटी 53,000, सॉरी 53,000 एंड 30,000, 23-24,000 पॉइंट ऊपर जाएगा, 77,000 के आसपास का टारगेट आएगा। स्टॉक ने खेल खेल में लगा दिया सर, कोई बड़ी बात नहीं है, पैटर्नों का राजा है। सिमिलरली लोग कहते हैं कि जी 2014 के बाद मार्केट का भागी पता नहीं लगा, ये तो बड़ा वो हो गई जी, काश हमें पहले पता लग जाता। वी ऑलवेज से वन थिंग, चार्ट पहले बनेंगे, न्यूज बाद में आएगी। आपको ये कप और ये छोटा सा हैंडल दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो एमएस पेंट पे लेके जाऊं, अपनी पेंट स्टूडियो पे। प्यारा सा कप और एक प्यारा सा हैंडल, जिस किसी को भी फीलिंग नहीं आ रही है तो सर ये लो, एमएस पेंट पे ले जाते हैं, यहाँ पे आ जाएगी। ये रहा सर आपका कप, ये रहा हैंडल। मंथली चार्ट पे बन रहा है जी, और ये जो ब्रेकआउट आया जी इस वाले हफ्ते महीने में, ये महीना नोट कर लेते हैं कौन सा है, हटाओ जी। ये महीना है जी आपका मार्च का, नीचे आ रही है जी डेट, वो छोटे से बॉक्स में काली वाली में। मोदी सरकार ने जी मई में आई थी 2019 में, कप विद हैंडल ने पहले बोल दिया था मार्च में ही, कैसा ब्रेकआउट हो रहा है, समथिंग इज कमिंग। मार्केट टेक्निकल चार्ट्स आर मेड फर्स्ट, न्यूज कम्स लेटर। ये ब्रेकआउट आया था जी, ब्रेकआउट था 6,300 पे, लो लगा हुआ था 4,500, बस ज्यादा कुछ नहीं, 1,800 पॉइंट ऊपर जाएगी 6,300 वाली आइटम। 30% इंडेक्स में राइज आएगा, स्टॉक कहाँ पहुंच जाएंगे। बेसिक्स ऑफ टेक्निकल्स, क्रक्स ऑफ टेक्निकल्स।
पर सर एक डिस्क्लेमर दे दूं, देखने में बड़ा अच्छा लगता है पर पेशेंस नहीं आती। देख के आता तो हिस्टोरिकली तो बता दिया, पोस्टमार्टम करना सबसे आसान काम है ना जी। बट द पॉइंट है, आज 50 शेयर आपने देखे, 50 में से नहीं बन रहा, आज भी नहीं बना, कल भी नहीं बना, आप तो सिर पकड़ के बैठ जाओगे। अब ऐसे में क्या करोगे? ऐसे में से दो ही काम कर सकते हो, या तो और पैटर्न समझ लो, और इंडिकेटर समझ लो, या इंतजार कर लो। भाई भूख लग रही है, फ्रिज खोला, सामान है नहीं तो बना लो या इंतजार कर लो, सीधी सी बात है, और तो कुछ होना ही नहीं, राइट। इधर यू लर्न मोर एंड मोर पैटर्न्स एंड इंडिकेटर्स, जो यहाँ पर आपको बहुत सारे, आई थिंक शशि जी ने या कन्हैया सर ने आपको बताया होगा, ब्रोशर में मेंशन्ड है कि आपको बहुत सारे पैटर्न्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स कराए जाएंगे, एंड यू लव इट। बट द पॉइंट इज यू शुड हैव एन ईगरनेस टू लर्न एंड द ईगरनेस टू प्रैक्टिस ऑल्सो, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस नहीं होगा सर। और प्रैक्टिस जितनी मर्जी कर लें, द्रोणाचार्य जी ने सबको सिखाया था, सब अर्जुन नहीं बने। ओनली थिंग इज डेडिकेशन एंड पेशेंस। अगर आप डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करते हैं और पेशेंस के साथ ट्रेड करते हैं, कि ट्रेड आएगा तो मैं ट्रेड लूंगा, अपने पैरामीटर्स पर ट्रेड लूंगा, अपने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लूंगा, और अपने रिवॉर्ड तक ही खड़ा होऊंगा। उसके बाद क्या करना है मैं अपने चार्ट से ही पूछूंगा। टेक्निकल एनालिसिस इज स्टार्टिंग टॉकिंग विद योर चार्ट्स। आप अपने चार्ट्स के साथ बातें करना सीखिए, वो चार्ट्स बताएंगे करना क्या है। With all these things, I'm putting my deliberation to rest. Let us put this floor open to questions. So, friends, you can unmute yourself one by one. What I'll do is I mean, you can raise your hand and I'll unmute you one by one. किसी को कोई भी क्वेश्चन है आप सर से पूछ सकते हैं। जी सर। जी अनूप जी, प्लीज गो अहेड। Yeah, evening sir. Brilliant sir. Yeah, my question is that कि ये जो चार्ट पैटर्न्स जो भी है सर आप जो अभी बता रहे हो, आई एम वेरी न्यू टू दिस वन, ओके, आई डोंट नो। सो ये माने 5 मिनट्स का चार्ट देखना है, 15 मिनट्स का देखना है, लाइक वो सब आप जब कोर्स लूंगा, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड, आई एम आल्सो टॉकिंग विद अभी रिगार्डिंग द कोर्स, सो दिस विल बी ऑल कवर्ड इन देयर ना सर? यस सर, यस सर। बट ना एक बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछ लिया। एक मैं डिस्क्लेमर आपको दे दूं, थोड़ा सा लंबा आंसर आया सर, प्लीज अदर्स बेयर विद मी। सर कहानी क्या है, जब भी कभी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा, हमेशा अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा जो मैं ही पूछूंगा, आप कौन है, राइट। और ये मेरे क्वेश्चन आज मैंने नहीं निकाला, हमारे युगो युगो से पूछा जा रहा है, कौन हो सामने हो, है ना, वही वाला फंडा। पॉइंट है, आप इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या इंट्राडे ट्रेडर हो, जैसे हो वैसा चार्ट आपके लिए है सर, राइट। वैसा चार्ट आपके लिए, आप वैसा चार्ट देखेंगे, ठीक है सर। क्योंकि है क्या, अगर हम हैं तो कुछ और चार्ट देख रहे हैं कोई और, कुछ नहीं होगा सर, राइट, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो पॉइंट है, सेकंड डिस्क्लेमर फ्रॉम माय साइड व्हिच इज, सर मेरा फोरे पोजिशनल ट्रेडिंग का है, राइट। मैं मुझसे पूछे तो मुझे इंट्राडे पसंद नहीं आता। 2007 से 2013 तक हमने, 13.5 तक बल्कि, हमने इंट्राडे कराई जी, राइट। बट बड़ा पैसा पोजिशनल में बनता है, इंट्राडे में एफर्ट ज्यादा है। रीजन, आप पोजिशनल में आप ट्रेंड खेलते हो, इंट्राडे में आप नॉइस खेलते हो, राइट। वोलेटिलिटी है, यस, लोग करते हैं, कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। माय कप ऑफ टी इज पोजिशनल, indicator based trading, pattern based trading, combination of indicators and patterns, and some special formations, special indicators, special combinations. तो मैं जो कराऊंगा वो पोजिशनल कराऊंगा। उसके बाद जो एडवांस टेक्निकल एनालिसिस आप करेंगे, प्रोफेशनल टेक्निकल एनालिसिस, वो अशोक जैन सर कराते हैं, वो इंट्राडे का पार्ट भी कवर कराते हैं। तो जो एक्सपेक्टेशन लेवल है वो पहले से हमारे को पता होनी चाहिए, क्योंकि सेटिस्फेक्शन तभी आता है।
राइट। माय कप ऑफ टी इज पोजिशनल, और सर जो है आपको ईलेट भी कराएंगे, इंट्राडे भी कराएंगे, और बाकी चीजें, राइट। एनी अदर क्वेश्चन अनूप सर? प्रदीप सर? Yes, Pradeep sir, please go ahead. हेलो सर, मैं इस चीज में बिल्कुल बिगनर हूँ। ठीक है ठीक है, सर। मेरे को ना तो कैंडल स्टिक्स का पता है ना और कुछ चीज का पता है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए सर, परवाह मत करें, जी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो भी कराया जाता है, ये मान के चलते हैं कि सबको कुछ नहीं आता, ठीक है, राइट फ्रॉम द स्क्रैच। ओनली द zeal टू लर्न विच इज रिक्वायर्ड, नो प्री नॉलेज, नो प्री कंडीशन। और एक और चीज जो यूएसपी, जो सेशन मैं लेता हूँ मेरी तो है ही है, पर बाकी सब फैकल्टीज की भी है सर। जब तक हर लास्ट पर्सन तक एक टॉपिक समझ में नहीं आ जाए, आगे जाने का फायदा क्या है? सर वी ऑल आर पार्ट ऑफ ग्रुप, पूरी फैमिली जा रही होती है, ज्वाइंट फैमिली जिसको हमारे यहाँ पे एचयूएफ या ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। सर लोग ऊपर साथ में जा रहे हैं, एक बच्चा पीछे रह गया, आप चले जाओगे क्या? यू हैव टू वेट हियर ना, इट इज अ कलेक्टिव ड्यूटी। आज एक पर्सन को नहीं आया, कल दूसरे को नहीं आएगा, तो क्या करिएगा? ये आप लोगों की जिम्मेवारी से चलने नहीं देना तब तक आगे। मैं तो बोलता हूँ भैया, जब तक समझ में नहीं आए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, 100 बार कराओ टॉपिक। थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर। केशव सर? जी केसर जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर यूट्यूब और शॉर्ट्स भी बहुत तरह का, मतलब कोई एमसीएक्स करके, फिर क्या कहते हैं एलटीपी करके, वो सब क्या है? वो सब मेथोडोलॉजी है या फिर? गॉट इट। एलटीपी इज लास्ट ट्रेडेड प्राइस, राइट। जब आपको डेरिवेटिव कराया जाएगा तो एनएससी की वेबसाइट पर जो ऑप्शन चेन है उसे खोल दिया जाता है। आई थिंक मेजोरिटी ऑफ क्वेरीज आपको वहीं पर कवर हो जाएगा। वो सब मेथोडोलॉजी है। देखिए अल्टीमेटली क्या है, it is the duties of the faculties, either me or any other person, who has to hold your hand, right, and drive you through. तो यार वहां पे ये तो बताना बाय डिफॉल्ट है, जरूरी है, बिना उसके कैसे होगा कि सर ये है, ये है, और ये ऐसे है, और इनका कॉम्बिनेशन ऐसे है, राइट। जब तक हमें इन्हीं चीजों का नहीं पता होगा, विश्वास मारिएगा आप जा ही नहीं सकते। तो सही है। प्रैक्टिकल टच नहीं है, फिर तो थियोरेटिकल है भैया, गाओ जाओ, और नहीं, उसका फायदा नहीं है सर। एवरीथिंग विल बी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। तो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड में ही मजा आता है, समझ में भी आता है। हाँ, शुरू के 3-4 लेक्चर थ्योरी ओरिएंटेड रहेंगे। कारण यार पहले जब तक एबीसीडी समझेंगे नहीं तो आगे कैसे चलेंगे? तो शुरू के 3-4 लेक्चर्स विल बी थ्योरेटिकल, एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग विल बी प्रैक्टिकल। ओके सर, थैंक मैं यू। जब सर वो कराता हूँ डेरिवेटिव्स, तो व्हाट आई नॉर्मली डू इज आफ्टर फर्स्ट 3-4 सेशन, अच्छा मैं यहाँ पे पहले शेयर कर दूँ सर। वी जस्ट गो लाइक दिस, निफ्टी ऑप्शन चेन डेरिवेटिव यहाँ पे कराने में हमें मजा आता है कि जी इस पे करेंगे डेरिवेटिव। तो सर हियर इज योर एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। कोई और क्वेश्चन सर? सर सेशन मजेदार होगा, जैसा मतलब आज लगा, देख के सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। सर ध्यान रखिएगा, वी ऑलवेज बिलीव, मतलब मेरा अपना ऐसा पर्सनल मानना है, कीप द एक्सपेक्टेशंस लो, राइट। फ्रूट्स जो है ना एंजॉय अच्छा लगता है, बट इफ यू कीप द एक्सपेक्टेशंस हाई, तो सर यस 100 में से 99 मिल जाए ना, दुख होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है सर। जी भूपिंदर सर? सर अनम्यूट कीजिएगा। भूपिंदर सर अनम्यूट कीजिएगा। हो गया सर? हेलो सर। जी सर।
सर अभी मैं भी इसमें अभी बिगनर हूँ। लास्ट 3 डेज से मैं अभी ट्रेड कर रहा हूँ बैंक निफ्टी पे। तो सर अभी लास्ट 3 डेज में मुझे अप्रोक्स 23,000 अभी मेरे चले गए हैं। अभी मैं फ्राइडे को अभी सीई पे बैंक निफ्टी पे कुछ अभी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बट वो अभी हमारा पूरा माइनस लॉस में गया हुआ है, तो मैंने उसको होल्ड करके रखा हुआ है। पुट क्या कैसे अभी लॉस में जा होल्ड? सकती है फ्राइडे को सर? खरीदी कब हाँ थी? जी सर। खरीदी कब थी पुट? सर फ्राइडे तो सर फ्राइडे कल को जो खरीदी थी, कल कॉल और पुट दोनों पे। कॉल और पुट दोनों खरीदी थी, ठीक है। मैं भी कहूँ कि अकेली हाँ जी। पुट कैसे लॉस में जा सकती है परसों? हाँ जी। तो सर अभी तक 3 दिन में हमारे पास तो अप्रोक्स 45,000 आए हैं और हाँ 45,000 गए और 25 आए हैं, तो अप्रोक्स वही 23,000 मेरा जो है अभी लॉस में मैं चल रहा हूँ। तो करा अभी क्या ये था? कुछ मैंने करा क्या शेयर था होल्ड सर? करके रखे। करा क्या बैंक था सर? निफ्टी पे लिया हुआ था। क्या बैंक लिया था निफ्टी सर? क्या लिया था सर? सीई और पीई दोनों लिया है सर। कॉल और पुट दोनों खरीदी थी आपने? हाँ जी। कौन से दिन बनाई थी सर स्ट्रेटेजी? सर ये फ्राइडे की है, कल की। कल ही बनाई है? जी। मतलब एंट्री कल की है? हाँ हाँ एंट्री कल की है सर। और कौन से स्ट्राइक प्राइस पे थी सर? 46,000 एंड 46,300 सीई एंड 46,200 पीई। मतलब 4600 का कॉल खरीदा हाँ और और 46,300 का कॉल खरीदा पुट खरीदा। और 46,200 का पुट था सर। मैंने सर पुट गलत टाइम पे ले लिया था। पुट लेने के बाद मार्केट अप हो गई, लेकिन फिर भी हमारे टारगेट प्राइस तक नहीं गई। 46,300 का कॉल लिया है, 46,200 का पुट लिया है, ये बोल रहे हैं? जी जी। है, और दोनों इकट्ठे इकट्ठे तो नहीं लिए इसका मतलब आपने? नहीं सर 46,300 मॉर्निंग में लिया था, आफ्टर में 46,200 लिया था। सर तो इसीलिए लॉस हो रहा है ना सर। आपके साथ क्या हो, दोनों तरफ जूते जूते लगे। बुरा मत मानिएगा, नो सर। है ना? क्योंकि सर जब जब आपने पुट लिया तो मार्केट ऊपर चली गई, हाँ आपने कॉल ली मार्केट नीचे आ गई, मार्केट नीचे आ गई सर। है ना सर? अगर दोनों इकट्ठे समय लेते ना सर तो आप ही प्रॉफिट में होते। सर कहानी यही है। इसका मतलब मैं लिख के दे सकता हूँ, सॉरी सर बुरा मत मानिएगा, दुखता है तो मैं बोले बिना रह नहीं पाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं घर से परेशान हूँ, पर पॉइंट इज कि मैं एक उसूल का बंदा हूँ, मुझे रहा नहीं जाता है, ठीक है? और यही बोलने को मिलता है भाई, घर पे तो क्या बोलेंगे। दैट इज आई एम हैप्पीली मैरिड पर्सन फॉर 17 ईयर्स एनी हाउ। सर पॉइंट क्या है, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, डेरिवेटिव का पूरा नॉलेज नहीं है, स्ट्रेटजी का तो नहीं है, सिर्फ कॉल पता है और पुट पता है होती क्या है, करनी क्या है, और कभी कभार सर थोड़ी अभी बहुत तीन आपने दिन हुआ ट्रेड करी सर। होगी। हाँ जी सर, जी। है ना? अभी 3 डेज से ही कर रहा हूँ सर। बंद कर दो सर, बंद कर दो सर। ध्यान रखना, बाकी सबके लिए भी ऑप्शन खरीदने का मतलब क्या है, यूं प्रॉफिट हो जाए। अगले 1-2 दिन में भैया मेरी तरफ चल पड़ो। ये ऑप्शन की हालत क्या है, एक पुरानी कहावत है हमारे बचपन में ना, गांव में चला करती थी, जो मतलब मैं कभी गांव वैसे गया नहीं, पर हमारे फादर साहब सुनाया करते थे कि सब्जी जो है ना, सब्जी वाले को क्या बोलती है, या तो शाम तक तू मुझे बेच जा, नहीं तो शाम को मैं तेरे को बेच जाऊंगी। गलत तो नहीं है सर? ऑप्शन बायर का भी यही हाल है कि भैया एक दो दिनों में या तो मुझे दे जा, और नहीं तो वो आपसे पैसे लेके ही जाएगी। अगर आप बाय कर रहे हो ना तो सर 1-2 दिन में आपका काम हो जाना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड, या तो बैठो एक्सपायरी तक, कौन मना कर रहा है, व्यू बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो। तो यदि स्टॉक उल्टा चलने लग गया आपके व्यू के, व्यू पहले बनेगा ट्रेड बाद में आएगा। अगर व्यू के उल्टा चलने लग गया तो सर आपका बैंड बज जाए, बजने ही बजना है। और सर ये पुट भी जब आपने ली थी ना, थोड़ा प्राइस ज्यादा ऊपर चला गया तब ली थी। सॉरी हाँ सॉरी, जी ये पुट लेने फोर का थ्री प्राइस ज्यादा फोर। ऊपर चला गया था, जी जी। फिर आपने कॉल ली थी। और कॉल जब आपने ली तो शायद इंदम मनी की ले ली होगी, मतलब प्राइस और ज्यादा 46,300 से ऊपर ही होगा। इसका हाँ जी सर। तो कॉल आपने महंगी वाली ले ली, देसी भाषा हाँ में। 436 की है। हम्म,
उसकी अमाउंट भी ज्यादा थी, प्राइस भी ज्यादा था उसका कॉल का। हाँ जब हाँ, आपने change- 436 रुपए की कॉल थी उस उनमें टाइम कहना पे। महंगी अमाउंट की ले ली, तो वो भी एक प्रॉब्लम करता है सर। तो कांट हेल्प सर। अभी तो इस वाले में जो बने अपना बना लेना सर, पर इस तरीके के काम मत करो सर, इससे बड़े तो पैसे दान कर दो, किसी की दुआ तो लगेगी। डन सर, सॉरी सर भूपिंदर सर, जेन्युइन आंसर दिया है मैंने, डोंट टेक इट अदरवाइज। जी चंद्र सर। जी चंद्र जी, प्लीज गो अहेड। गुड इवनिंग। मुहिम सर। ये जो आपने दो पैटर्न बताए हैं, ये दोनों भैया उम्दा तरीके से समझ सकते हैं। सिर्फ जो जानना चाहता हूँ वो ये जानना चाहता हूँ कि ये कितने टाइम फ्रेम के चार्ट पे बने। आपने चूंकि बताया आप पोजिशनल उसमें करते हैं, तो आप पोजीशन में बता दीजिए, इंट्राडे में किसी और पूछ लेंगे। जी बट गॉट क्वेश्चन इट का सर। ये है सर। सर डेली चार्ट एंड वीकली चार्ट। एक मिनट सर, एक जी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये है सर कि जो आपने कप एंड होल्डर बताया था, कप विद हैंडल, कप हाँ एंड जी। हैंडल, उसमें सिमिलर टारगेट रहेंगे जैसे हेड एंड शोल्डर में थे कि जितना हेड की लेंथ बनती है शोल्डर से उतना ही वो नीचे गिरेगा। सिमिलरली रिवर्स में उसको उल्टा कर लेंगे। कप एंड हैंडल में मेथोडोलॉजी किस तरह से रहेगी, टारगेट और स्टॉप लॉस की, वो एक बार रिपीट करेंगे। और ये कौन से टाइम फ्रेम में बनेंगे चार्ट पे, वो थोड़ा बताएंगे प्लीज। थैंक यू सो मच। जी सर, दोनों ही पैटर्न डेली पर और वीकली पर बहुत बेहतरीन काम करते हैं। मंथली पर बन जाए तो सुभान अल्लाह। तो डेली और वीकली बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देते हैं दोनों ही पैटर्न का। पहला पार्ट ऑफ आंसर ये है। दूसरा पार्ट के लिए जब आपने बोला टारगेट, सर सिंपल थंब रूल दे रहा हूं, जैसे कप हेड एंड शोल्डर में करा था ना, सेम इसमें कर देना जी। तो थंब रूल इज ब्रेक आउट पॉइंट। जो ब्रेकआउट पॉइंट था वहां से कप का लोवेस्ट पॉइंट, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए और उल्टा कर दीजिए। तो शॉर्टकट में जैसे हेड एंड शोल्डर का करा था वैसे ही कप विद हैंडल का भी करा जाएगा। द बेस्ट चार्ट इज डेली एंड वीकली फॉर बोथ द फॉर्मेशंस। डन है सर? चलिए सर, आंसर्ड। हेमा जी, प्लीज गो अहेड। Hello, sir. Himani from this side. जी हेलो मैम, बताइए। Like I'm a very new beginner to trading, so I'm also taking classes. Like मैंने 15,500 रुपए पे किए हैं, तो वो लोग कैंडल स्टिक्स के बारे में मतलब मुझे सिखा रहे हैं। तो मुझको उसपे कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है, बट कुछ कुछ वो इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से हो रहा है, मतलब लाइंस बनाना, ग्राफ्स बनाना, एंड मतलब इतना सब कुछ हो रहा है। मतलब एज अ बिगनर आई एम फाइंडिंग इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एंड दे आर गिविंग मी कॉल्स फॉर 6 months। और उन्होंने जो फर्स्ट कॉल दी मुझको, मतलब जो कि इतना शेयर्स इतने में बाय करना है, वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट है, उसमें प्रॉफिट्स भी हुआ है मुझे। बट यू नो आई एम नॉट एबल टू लर्न द बेसिक्स, मतलब जैसे जो बेसिक्स है कि कौन सा स्टॉक्स हमें खुद से परचेज करना है, क्या करना है, मतलब कैसे हमें शेयर मार्केट में घुसना है, कैसे मतलब हमें लॉस कहाँ होगा, कैसे पता करना है, तो वो सब ये सब उसके टैक्टिक्स और टेक्निक्स हमको समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल बेटा जी, आपने बिल्कुल सही बोला। देखिए, किसी और के बारे में मैं कभी भी कोई कमेंट नहीं करता हूँ। एज फार एज दिस प्लेस इज, मैं तो अपने बारे में बोल सकता हूँ, वी आर कंसर्न। जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो पूरा होगा, वही यूएसपी है। पॉइंट क्या है, खुद ही इतने कैपेबल बनो ना। पता लगा अनूप सर से हम पूछे हैं, अनूप सर ने बोला जी आज खरीद लो। कल दोबारा अनूप सर के घर गए, सर वहां थे ही नहीं। अब क्या करना है? राइट, तो प्रॉब्लम आ गई। तो अपना हाथ जगन्नाथ, खुद कैपेबल बनिए। और जैसे आपने बोला, व्हाट यू बी नीड टू अंडरस्टैंड, खरीदना कब है, बेचना कब है, कब मार्केट को एनालाइज करना है, चार्ट देख करके समझ में आ जाए इस समय क्या होने की संभावनाएं हैं। राइट, हमें किस तरफ रहना है, करना है, कुछ नहीं भी करना है, ये भी एक ट्रेड होती है कि कुछ नहीं हो रहा है तो इग्नोर, कोई और चार्ट देखते हैं ना। तो ये खुद को समझ में आना चाहिए। और एज फार एज आई एम कंसर्न, मैंने तो हमेशा से एक चीज बोली, जब तक लास्ट बंदे को समझ में ना आ जाए
मैं टॉपिक आगे मैं तो टॉपिक आगे नहीं बढ़ाता हूँ सर। हम्म बट ऑब्वियसली यू शुड बी अटेंडिंग द सेशंस। ऐसा नहीं है कि 5 सेशन के बाद आया जी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तो सॉरी, पहले रिकॉर्डिंग देख के आइए, है ना। तो पॉइंट इज दिस। ओके, तो आपके हाँ। कोर्सेज भी हैं अवेलेबल? इसके बारे में कन्हैया जी बताएंगे आपको। ओके फाइन। ओके ओके, सो सर मैं क्विकली प्रोग्राम समझा देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। सो फ्रेंड्स, जो हमारे प्रोग्राम है 3 लेवल्स प्रोग्राम है। फर्स्ट मॉड्यूल इज दैट इज स्टॉक मार्केट एंड एडवांस डेरिवेटिव, जिसमें वी स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक एज व्हाट इज स्टॉक मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, स्टॉक मार्केट में फंक्शन क्या होते हैं, डीमैट अकाउंट क्या होता है, कैसे डीमैट अकाउंट ओपन होता है, मतलब एज ए लेमैन एनी पर्सन कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टॉक मार्केट। एंड देन वी मूव फॉरवर्ड टू द डेरिवेटिव में, जहां पे हम ऑप्शंस, कॉल पुट ऑप्शन सीखते हैं, गीक सीखते हैं, डेरिवेटिव मैथमेटिक्स सीखते हैं, डेरिवेटिव हाउ टू क्रिएट आवर ओन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इन द डेरिवेटिव, वो सब हम करते हैं। डेरिवेटिव सिस्टम क्या होता है, ट्रेडिंग सिस्टम, फिर स्टॉप लॉस क्या होता है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए, एंड देन द लास्ट इज प्रॉब्लम एंड रिवीजन। सर रुको सर, वापस चलो। यस सर। व्हाट इज कॉल, व्हाट इज पुट, ये कराया जाता है। इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी। देन इज स्ट्रेटजीज, प्रोटेक्टिव कॉल पुट, कवर्ड कॉल पुट, स्ट्रैडल्स, ट्रायंगल, ये सब स्ट्रेटजीज आपको, बुल कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, कैलेंडर स्प्रेड, ये स्ट्रेटजीज कराई जाती हैं। जब तक किसी को अगर स्ट्रेटजी समझ में नहीं आए तो फायदा नहीं है कुछ भी करने का। स्ट्रेटजीज आप बना सकें देन ओनली तो माना जाएगा ना कि आपको समझ में आई है बात। इसके अलावा वी ऑल्सो टच अपॉन द ब्लैक शॉल्स मॉडल, कि आप ग्रीक्स क्या होते हैं, डेल्टा क्या है, गामा क्या है, थीटा क्या है। मोर फोकस इज गिवन ऑन डेल्टा एंड थीटा, बिकॉज अगर वो समझ में आ गया ना, ऑप्शन सारी समझ में आ गई। इसके अलावा रो एंड वेगा, वॉलेटिलिटी का इफेक्ट क्या होता है, ये सब इसमें कराया जाता है। एंड आफ्टर दैट वी ऑल्सो टच गिव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओपन इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट, कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ओआई डाटा क्या होता है, कि एंड उसका इफेक्ट क्या आता है। चलिएगा सर, नहीं जी आगे चलिएगा। यस सर। द सेकेंड मॉड्यूल इज टेक्निकल एनालिसिस एडवांस, जिसमें हम बेसिक ऑफ टेक्निकल, स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक ऑफ टेक व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, एंड उसके बाद ट्रेंड लाइंस क्या होते हैं, चार्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं, बार चार्ट्स, कैंडलस्टिक, लाइन चार्ट्स, चार्ट्स, देन पैटर्न्स कौन से होते हैं, ट्रेंड्स देखते हैं हम, कैंडलस्टिक, कैंडल वॉल्यूम क्या होता है, पैटर्न्स क्या होते हैं, देन गैप थ्योरी, इंडिकेटर्स, ऑस्किलेटर्स, और फिर उसके बाद वॉल्यूम टूल्स फॉर ट्रेंड्स। Sir, you want to add something on this slide, sir? ओके सर, हाँ जी। ये जो सर ने अभी बताया, बेसिकली द क्रक्स है, एक होते हैं पैटर्न्स, जैसे हमने करा हेड एंड शोल्डर, कप विद हैंडल, ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, चैनल्स, rectangle formation, cup with handle, flag formation, peanut formation, rounding bottom, double top, double bottom, multiple bottom, head and shoulder, inverted head and shoulder, ये formations कराए जाते हैं, and wedge also। और इसके बाद आते हैं सर इंडिकेटर्स में। इंडिकेटर्स में RSI, MACD, बॉलिंगर बैंड, मूविंग एवरेजेस, ऑन बैलेंस वॉल्यूम, ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कराए जाते हैं। और इसके बाद मैं तो अपना पार्ट बता रहा हूँ जो मैं कराता हूँ, इसके अलावा नेक्स्ट वाला पार्ट जो अशोक सर का आएगा वो आएगा, ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर आ गया है, राइट। इसके बाद आते हैं सर कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस में, हेरेमी फॉर्मेशंस, बुलिश हेरेमी, बेरिश हेरेमी फॉर्मेशन, एंगल्फिंग फॉर्मेशन, जिन्होंने हिमा जी ने शायद क्वेश्चन पूछा था, आपको शायद प्रॉब्लम आ रहा होगा कुछ इंडिकेटर्स में, पैटर्न्स में, बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, पियर्सिंग लाइन, डार्क क्लाउड कवर, डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, नॉर्मल एक डोजी होता है, एंड देन इज ड्रैगन फ्लाई डोजी, हैमर, हैंगिंग मैन फॉर्मेशन। ये कुछ तरीके के फॉर्मेशन हैं जो कराए जाते हैं। एन फॉर्मेशन, 3 ब्लैक क्रोस, 3 वाइट नाइट्स,
ये कुछ पैटर्न्स हैं जो आपको कराए जाते हैं। जी सर, कंटिन्यू कीजिएगा। एंड डाउ थ्योरी ऑल्सो। Thank you, sir. So the first module and second module, the both classes will be taken by CS Sachin sir itself. Third module जो है हमारा टेक्निकल एनालिसिस प्रोफेशनल पार्ट, जिसमें सर ने पहले बताया था कि इसमें प्राइमरली फोकस रहता है इंट्राडे पे, और जस्ट अशोक जैन सर का फोरे है। अशोक सर is also a technical analyst with more than 40 years of experience in stock market, more than 45 years of experience. इनका जो मेन प्राइमरली रहता है that is related to the Elliott wave, how to use Elliott wave for the intraday trading and the other aspect of related to or close to the that Elliott wave only. These are our faculty, sir. Ashok Jain sir is one of the best known and stock market analyst, and he has more than 45 years of experience in stock market trading. As you know, Ashok Sachin sir, award winner, market analyst and trainer. He is chartered accountant and stock market course, finance faculty, portfolio manager. I have already introduced in the beginning of this session. ये है सर हमारा प्रोग्राम फी। द फर्स्ट मॉडल स्टॉक मार्केट एंड एडवांस डेरिवेटिव, जिस ये 24 आवर्स इसका प्रोग्राम ड्यूरेशन होता है। दैट मींस 2 आवर्स ऑन सैटरडे एंड 2 आवर्स ऑन संडे। वीकेंड क्लासेस होती है सर 2 आवर्स अर्ली मॉर्निंग एंड 2 आवर्स इन 2 आवर्स in the morning, Saturday and Sunday. Course fee is 12,500 rupees. Technical analysis advanced, that's a 30 hours program. The program fee is 12,500, and technical analysis professional, that costs you 15,000 rupees. That is a 30 hours program. Including all, the program fee comes to 40,000 rupees. So if you go to enroll for the complete program, it will cost you 34,900. If you go level wise, module wise, it will cost you 40,000 rupees. We also have a tie-up with NBFC who can provide you student loan at 0% interest rate. What you have to do is you have to pay with the you have to enroll with the 5,000 rupees as a down payment, and the rest amount will be you can avail a 0% loan with at 6 easy EMIs. This is my number. This is our number 9711456906. You can call on this number, and my team, Suman, Sandhya, Abhijit is there. They can help you, guide you, or explain you if you have any doubt, or if you have any doubt related to the program, query, anything you can ask here. Yes, Anubji. Hello, can you hear me? Yes, sir. ये आपकी मेरी अभिजीत पनवर जी से बात हो रही है। आपकी टीम के है ना, उनका नाम नहीं। Abhijit, yes अभिजीत sir. पनवरिया। ओके, ठीक है सर। वो ऑनलाइन में इतना वो चलता है ना, इसलिए थोड़ा डर लगता है वो। नहीं सर, बिल्कुल डेफिनेटली। और ये अच्छा रहता है, इसीलिए मैंने तीनों नाम ले लिए हैं, अभिजीत, संध्या और सुमन। ये तीनों हमारे टीम मेंबर हैं और ये एडमिशन टीम में है सर। आप इनको कॉल कर सकते हैं, बात करके इनसे अपना प्रोग्राम के बारे में एडमिशन ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, किसी को अगर कोई क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, चैट पे पूछ सकते हैं, या फिर यू कैन रेज योर हैंड and I'll unmute you. You can ask your question. If something is related to the fee or anything, I will be answering your question. Or if something is related to the program, Sachin sir himself is here. He will be in the better position to answer. Yeah, Paramjit ji, please go ahead. हेलो सर। Yes sir. सर जो सर ने क्लास ली बहुत अच्छा उन्होंने समझाया। मेरा सर एक क्वेरी थी, मेरी क्वेश्चन है
कि जैसे मैं ऑप्शन बाइंग में मैंने पिछले एक डेढ़ महीने से मतलब 10,000 के अमाउंट से मैंने करके देखा, मुझे मतलब जितना लॉस हो रहा है उतना प्रॉफिट हो रहा है। सो मतलब ना ही ज़्यादा मतलब 50-50 का रेशो हो रहा है ना। सो मैं इसमें सोच रहा था कि जो ऑप्शन सेलिंग में भी मैं इसमें ना एक बार इसकी नॉलेज लेना चाहता हूँ। तो क्या मतलब शेयर गुरुकुल में ऑप्शन बाइंग के साथ ऑप्शन सेलिंग की भी क्लासेस चलती हैं? ब्रदर आपको ना बिल्कुल। ऑप्शंस कराई जाएंगी एंड सी द पॉइंट इज आपको व्यू पहले बनाना है, Okay. ट्रेड बाद में लेना है। बेसिक क्रक्स है ऑप्शंस का, व्यू पहले बनेगा, ट्रेड बाद में लेंगे। Okay. अगर आपको लगता है एग्जांपल के तौर पे कि मार्केट नीचे पहुंच बेच दो ना, कॉल पुट दोनों, दिक्कत नहीं है। और अगर आपको लगता है नीचे जाएगा, आप कॉल बेच दीजिए। अगर ऊपर चला गया तो क्या? ऑप्शन सेलिंग इज अ वेरी गुड टूल प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू कंट्रोल इट, राइट। अगर वो अनकंट्रोलेबल हो गया तो गए। तो हम वी आर ए बिलीवर ऑफ वन थिंग, आपको व्यू पहले बनाना है और ट्रेड बाद में बनाना। व्यू बनाना सीख गए तो ट्रेड तो आ ही जाएगी, फिर चाहे बाय करें चाहे सेल करें, क्या फर्क पड़ता है, दोनों दोनों कर पाएंगे। ओके, फाइन, थैंक यू। इतना ही पूछना था मुझसे। थैंक यू। जी जी केशव जी, प्लीज गो अहेड। सर क्लास का फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट सर आपका लाइव क्लास जैसे अभी बात हो रही है ना चैट में, हम या जूम पे हम कनेक्टेड है, वैसे ही क्लास होती है जूम पे। 2 आवर्स सैटरडे और 2 आवर्स और संडे वीकेंड क्लासेस होती है सर, ऑनलाइन होती है, जूम प्लेटफॉर्म पे होती है। बाकी जो आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग होती है वो हम आपको LMS पे प्रोवाइड करते हैं कि इन केस अगर आप क्लास मिस कर जाते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है क्लास में जो कि एक बार में समझ में नहीं आता, सो यू कैन गो थ्रू योर रिकॉर्डिंग्स, यू कैन रिव्यू, और वहां से आप अपना देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। मतलब फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल होके हम नहीं कर सकते हैं वहाँ पे नहीं सर, उस ये तरह? ऑनलाइन ही है, कंप्लीटली ऑनलाइन ही है। ओके। फिजिकल के लिए बहुत सारी चीजें हैं सर। अगर आप देखो तो 2020 के बाद, 2020 से पहले हमारा फिजिकली था, अ, उसके बाद हमने इसको ऑनलाइन किया। 2000 पहले 20 से पहले लोगों की एक्सेप्टेंस भी नहीं होती थी ऑनलाइन के लिए, लेकिन आज के टाइम पे आप देखो तो हर कोई, माय फादर इज वेरी कंफर्टेबल विद द जूम, राइट। और जिनको टेक्नोलॉजी से कोई इतना ज्यादा नहीं है, तो आज के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस दैट इज वेरी एक्सेप्टेबल एवरीवेयर। थैंक सर यू सर। क्लास टाइमिंग भूपेंद्र जी, हमारे 2 बैच चलते हैं, एक 9 to 11 और 11:30 to 1:30। सो जो नेक्स्ट बैच आएगा वो आपको बता दूंगा मैं, जो प्रोग्राम एडवाइजर है वो आपको बता देंगे। जो अभी मेरा नेक्स्ट बैच आने वाला है वो 9 के स्लॉट में है, 11:30 वाले स्लॉट में है। बट यस, इसी दोनों में से एक आपका रहेगा टाइम। ओके सर, थैंक यू। Any questions? You can ask your question, sir. What's the price of the program fee is sir 34,900 रुपया। सर ये हिंदी एक्सेंट इज बेस्ट, यस सर का हिंदी इंग्लिश दोनों एक्सेंट बहुत बढ़िया है सर केशव जी। All right, so Sachin sir, I cannot see any question is unanswered. So anyway, friends, if I have missed or anything you have something to ask later, you can anyway call on this number 9711456906 and
Okay. All right. So signing off, sir. I cannot see any question unanswered और ना ही मुझे कोई query दिख रही है. तो मैं बंद कर रहा हूँ सर. Thank you so much, sir. Thank you so much, everyone. Signing off.